Now class 12th, we are again focusing on the next topic, that is law of mass action, and it's one of the important topic. Definitions is being asked in your board examination. So this was a general concept that was given by a chemist, and he was Gutenberg's and the Wedge in scientists in 1867 he put this law. And according to this law, it was seen that at a given temperature, the rate of chemical reaction was directly proportional to the products of the active masses of the reacting substances. So, suppose what I mean to say that, suppose if a reaction is given to you, suppose A and B is two reactants are there, and this reaction is going on and it is giving you the product. So if you want to apply the law of mass action to it, then you should understand that the what does it means. Basically over here अगर तुम law of mass action apply करोगे तो जो तुम्हारा एक पर्टिकुलर ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चल रहा है, इट्स बीन कैरिंग एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और अ गिवन टेम्परेचर, तो व्हाट विल हैपन टू द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन. सो दैट वाज सीन दैट इट वाज डायरेक्टली proportional to the active masses of the reacting species. Now first of all you have to see that these are your reactants and these are your products. So these are your reacting species and these your products, राइट. सो दिस वे, ठीक है. अभी रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे चल रहा है, तो उस कंडीशन पे क्या हो रहा है, द रेट विल बी इक्वल टू, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, या ऐसे कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल, या सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज एट अ गिवन टेम्परेचर. तो ये हो गया, ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी, ठीक. ये रिएक्शन है. अब इस कंडीशन में आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं आर इज़ directly proportional to the active masses of the reacting species, that is A and B. So when you are removing this proportional sign, so definitely you will get a constant that is equals to K. K constant you will obtain, and this will be like this. So this is what your constant, and you have to understand this constant is basically proportionality constant. And this particular proportionality constant is also known as your rate constant. Please, it's important, numericals are asked, or your velocity constant. ठीक है, ये चीज़ है. I'll give you the definition also, but we are just focusing on to how to write down the how to apply the law of mass action, yeah, this thing to your these things to your particular reaction. Now suppose the same reaction is been there, I'm just changing over here and I'm putting the Schizometrics coefficient over here. So what will be your answer? So in that particular cases यही point रहेगा आपका rate of reaction रहेगा. आप बस पावर इसमें, अभी तक तुमने देखा था जब हम Schizometric coefficient सीखते थे, जब हम पीछे बना रहे थे, चाहे हम when we were talking about the average rate or your rate of reaction, या जो भी हम देख रहे थे, तो we were seeing we are putting in the fractional. But over here when you are applying your law of mass action, then you have to put on these things, powers पे चढ़ाना पड़ता है. जैसे यहाँ पे A, यहाँ पे B, ये कंडीशन, जैसे इसका क्या हो गया A, इसका क्या है B, यहाँ पे A B. So this way you have to go through it. So I think this is clear to you how you have to do. So I am just giving you few things in it. So let's talk about the definition of this according to this law. You can write down, according to this law, at a given temperature, the rate of a chemical reaction is directly proportional to the product of the active mass. So I think this is clear to you. This way you can easily relate your things. Now it is very important कि जो rate of जो हमारा basically ये जो experimentally derivation हम निकालते हैं, rate with the concentration of the reactant, जो हमने ये अभी आपने लिखा है ना, ये सब चीज़ें,
ठीक है। तो ये हम लोग है ना ऐसे नहीं कि थ्योरेटिकली निकालते, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होती है वो एक्सपेरिमेंटली निकलती है, ठीक है। तो दिस वे यू कैन, क्योंकि ऐसे देख कर आप जज नहीं कर पाते हैं। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस पर्टिकुलर जो हमने लॉ ऑफ मास सेक्शन कहा, ये चीज़ हमारी बेसिकली लिख के जो आई है, इसको समझ लेना इसका क्या क्या नाम होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज योर रेट लॉ, और यू कैन से एज डिफरेंशिएशन रेट इक्वेशन, ठीक है। एक तो रेट लॉ है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन हो सकती है, या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं रेट एक्सप्रेशन। अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाता है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट दे आर आस्किंग। अगर आपसे रेट एक्सप्रेशन बोले जाएगा तो आपको ऐसे लिखना है, रेट लॉ बोला जाएगा तो ऐसे लिखना है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन बोला जाए तो यू हैव टू राइट डाउन इन दिस मैनर। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू ऑल हाउ यू हैव टू सी। Now children, active mass basically it's a UP board concept, but still I just want to tell you, एक फॉर्मूला ज़रूर याद कर लो, कभी कभार बाय मिस्टेक पूछ लेते हैं। तो एक्टिव मास इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस अपॉन वॉल्यूम इन द लीटर्स, ठीक है। ये चीज़ आ जाती है। अब यहाँ है आपका एक्टिव मास, ये हो जाएगा ग्राम मोल लीटर -1, तो ये इसकी यूनिट है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वील टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट, क्योंकि अभी आपने ये देखा है ना, अपना बनाया था रेट इज इक्वल्स टू के, और ये हमारा एक्टिव मासेस था, और जो हमारे शीज़ोमेट्रिक कोफिशिएंट्स थे वो पावर की फॉर्म में। इसमें हमेशा याद रखना ये आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, आप रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स लेते हैं या रिएक्टिंग स्पीशीज़ को यूज़ करते हैं, यू विल नॉट यूज़ अ प्रोडक्ट पार्ट ओवर हियर। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस के। तो हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ rate constant we'll see that how we can use it. Now please, there are few things. Rate constant is measure of the rate of reaction. तो आप रेट कांस्टेंट से आप क्या क्या मेजर कर रहे हो, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो रेट कांस्टेंट जब भी आप कैलकुलेट करोगे, इसका मतलब यू आर मेजरिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। तो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये डायरेक्टली रेट कांस्टेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब अगर रेट कांस्टेंट ज़्यादा है तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी आपकी फास्ट चलेगी, ठीक है। तो इससे ये कंक्लूजन निकलता है, इफ़ रेट कांस्टेंट इज़ larger then rate of reaction is faster and vice versa, ठीक है। अगर वैल्यू कम आएगी तो समझ लेना रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपकी स्लो चल रही है, ठीक है। अब नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट रिगार्डिंग द टेम्परेचर। द वैल्यू ऑफ के इज़, जैसे एक कोई अगर हमने कोई टेम्परेचर, इफ़ यू आर कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, तो के भी एक कांस्टेंट वैल्यू देगा, ठीक है। इफ़ द एट फिक्स्ड टेम्परेचर, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर है नहीं, मैंने अभी बताया था फिक्स टेम्परेचर का मतलब होता है कि आपने पूरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन आपने टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया है। जैसे 25 डिग्री पे आपका रिएक्शन हो रहा है तो ये फिक्स्ड हो गया है। तो उस कंडीशन पे जो आपकी वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट, या आप कह सकते हो के जो होगा वो भी क्या हो जाएगी, इज़ कांस्टेंट। ये तब हुआ जब हमने टेम्परेचर को फिक्स कर दिया है। अब सेकेंड पॉइंट इसमें आप ये भी देख सकते हो, जैसे आपने टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कांस्टेंट भी चेंज करेगा, ठीक है। चेंज द टेम्परेचर, द रेट कांस्टेंट विल ऑल्सो चेंज। ये सब कुछ पॉइंट्स हैं विच यू शुड नो टू रिमेंबर इट। नाउ नेक्स्ट इज द रेट कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। द रेट constant is independent of concentration, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना। नेक्स्ट इज डिफरेंट रिएक्शंस हैव, एक और पॉइंट है, हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, ठीक है।
तो रेट कांस्टेंट की अलग अलग रिएक्शन में आपकी अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं रेट कांस्टेंट की. तो आई थिंक दीज पॉइंट्स आर क्लियर टू यू. वी आर फोकसिंग ऑन द फ्यू ऑफ द पॉइंट्स विच वी शुड रिमेंबर. एंड प्लीज़ चिल्ड्रन फोकस ऑन द डिफरेंस ऑल्सो बिटवीन. एक क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन rate constant and rate of reaction. This also you should understand. ठीक है, इसको लर्न करना इस क्वेश्चन को. सो प्लीज़ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देखो, अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें, अगर हम रेट कांस्टेंट को देख के चलते हैं, रेट कांस्टेंट जो है इंडिपेंडेंट होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स, जबकि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर रिएक्टेंट्स. यूनिट्स जैसे इसकी यूनिट रेट कांस्टेंट है, डिपेंड करेगी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे. इसकी जो यूनिट होती है फिक्स होती है, चाहे कोई भी हो, कोई भी ऑर्डर ऑफ